بسم الله الرحمن الرحیم الحوار الاول حول التعارف. پہلا حوار تعارف کے بارے میں. حوار کا مطلب ہوتا ہے کنورزیشن، مکالمہ. یہ جو حوار ہے یہ دو بندوں کے درمیان ہے، قاسم اور علی. قاسم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، کیا. حال اردو میں بھی آپ حال بولتے ہیں. کا، یہ کاف جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ. کیف حالک کا مطلب آپ کا کیا حال ہے. یہاں آپ کی سہولت کے لیے میں نے آگے اردو ترجمہ بھی لکھ دیا ہے. علی بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں الحمد للہ. قاسم بولتے ہیں جی انا اسمی قاسم. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اسمی میرا نام، قاسم قاسم میرا نام قاسم ہے. وانت مسمک، انت آپ، ما کیا، اسم نام، اور کا اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ. وانت مسمک اور آپ کا کیا نام ہے. علی اسمی علی، میرا نام علی ہے. اسمی، اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں ایک بات کہ عربی کے اندر اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ میرا یا میری، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ بولو، اس چیز کا نام لو اور آخر میں یا لگا دو. جیسے مثلا اسم ایک لفظ ہے، آپ نے بولنا ہے میرا نام تو آپ بولیں گے اسمی. اسی طرح کتاب ایک لفظ ہے، آپ نے مثلا بولنا ہے میری کتاب تو آپ بولیں گے کتابی. اس طرح قلم لفظ ہے، نام ہے، تو آپ قلم کے بعد یا لگا دیں گے قلمی، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا قلم. اسی طرح اور بھی مثالیں، جو بھی آپ کو جس بھی چیز کے بارے میں آپ نے کہنا ہے کہ یہ میری ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے آخر میں کیا لگا دو، یا لگا دو. اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہنا چاہیں یہ آپ کی ہے تو اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں کاف لگا دینا ہوتا ہے. مثلا آپ نے بولنا ہے آپ کا نام، نام کے لیے اسم اور آپ کا کے لیے کا، اسموں کا. اسی طرح آپ کی کتاب، کتابوں کا. اسی طرح آپ نے بولنا ہے آپ کا قلم تو قلموں کا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ نے یہ کہنا ہو کہ یہ میرا میری، اس کے لیے لفظ کے آخر میں یا لگانا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا بولنا ہو تو لفظ کے آخر میں کا لگانا ہوتا ہے، کاف، کاف زبر کا. تو علی بولتے ہیں جی اسمی علی، میرا نام علی ہے. من این انت، من مانا سے، فرام، این کہاں، ویئر، انت آپ کہاں سے ہیں. یا قاسم، اے قاسم، میرا نام علی ہے، آپ کہاں سے ہیں اے قاسم. قاسم جواب دیتے ہیں انا من ترکیہ وانت ما جنسیتک. انا میں، من فرام سے گزر گیا یہ، ترکیہ من ترکی، میں ترکی سے ہوں. اور اگر آپ نے بولنا ہو تو آپ بتائیں گے، مثلا اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ بولیں گے انا من پاکستان. وانت، انت مطلب اور آپ، ما کیا، جنسیہ، جنسیہ کا مطلب ہوتا ہے نیشنلٹی. کاف زبر کا آپ کو پتہ ہے اس کا آپ اسی معنی میں آتا ہے. وانت ما جنسیتک، اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کے پاس کس ملک کی نیشنلٹی ہے. اب آپ جواب دیں گے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بولیں گے انا پاکستانی، میں پاکستان سے ہوں. علی یہ چونکہ سعودی عربیہ سے ہیں تو بولتے ہیں انا سعودی، میں سعودی ہوں، یعنی میں سعودی عرب سے ہوں، میرے پاس سعودی عرب کی نیشنلٹی ہے. قاسم کہتے ہیں تشرفنا. تشرفنا یہ جیسے آپ اردو میں ہم بولتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس طرح کے الفاظ کے لیے عربک میں لفظ استعمال ہوتا ہے تشرفنا، کہ ہمیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا. اسی طرح علی بھی یہی بولتے ہیں تشرفنا بک، یعنی آپ سے مل کر
खुशी हुई, आपने हमें मुलाकात का शरफ बख्शा। इलल लिक़ा, इलल लिक़ा, इसको जैसे हम उर्दू में बोलते हैं खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे, इस माने में होता है इलल लिक़ा, इलल लिक़ा। मअस्सलामा, मअस्सलामा, जैसे आप दुआ देते हैं किसी को, आप कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। मअस्सलामा माना अल्लाह आपको सलामत रखे, जी इस माने में आता है। तो इस तरह से इस जो तारुफ है, तारुफ से मुताल्लिक गुफ्तगू ये पूरी हो गई। अब इससे मुताल्लिक जो मश्क है हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके सबक में जो मश्क दी गई आप ज़रा देखें। सबसे पहले कहा अजिब लिमा याती, अजिब लिमा याती। अजिब का मतलब होता है जवाब दो, लिमा उस चीज़ का, याती जो आ रही है, यानी जो सवाल नीचे आ रहे हैं आप उनका जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम, इसका जवाब होगा वालेकुम अस्सलाम। मस्मुक, आपका नाम क्या है? तो आप जवाब देंगे इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। या आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लगाएंगे, इस्मी मोहम्मद, इस्मी अहमद, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। कैफ हालुक, आपका क्या हाल है? अब इसका आप जवाब देंगे अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं? तो इनके मानी तो आपको यकीनन मालूम हो चुके होंगे, सबक के शुरू में बता दिया। मिन माना से, ऐना कहाँ, अंता आप, मिन ऐना अंता आप कहाँ से हैं? जवाब अना मिन पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से हूँ। या अगर आप तुर्की से हैं तो बोलेंगे अना मिन तुर्किया। अगर आप इंडिया से हैं तो आप बोलेंगे अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद। मा जिनसियतुका, आपके पास किस मुल्क की नेशनैलिटी है? तो जवाब देंगे अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। या अना सऊदी, मैं सऊदी हूँ। हल अंता पाकिस्तानी, हल का मतलब होता है क्या, अंता आप, पाकिस्तानी पाकिस्तानी। हल अंता पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो आप इसका जवाब देंगे नाम, नाम, जी हाँ। नाम का मतलब होता है जी हाँ, जैसे आप बोलते हैं यस, नाम, नून आइन मीम, नाम अना पाकिस्तानी। हल हुआ मिन सूरिया, हल क्या, हुआ का मतलब होता है वो, मिन माना से, सूर्या, सूर्या का मतलब होता है शाम, शाम, शाम मुल्क है ना वो। हल हुआ मिन सूर्या, क्या वो शाम से है? तो अगर वो शाम से है तो बोल देंगे नाम हुआ मिन सूर्या, जी हाँ वो शाम से है। और अगर मसलन वो भी पाकिस्तान से ही है तो आप यूं बोलेंगे ला, ला का मतलब होता है नहीं। नाम हाँ, और ला का मान होता है नहीं। ला हुआ मिन पाकिस्तान, नहीं वो पाकिस्तान से है। माअस्सलामा, माअस्सलामा सलामत रहें, इसका आप जवाब क्या देंगे? इसका जवाब आप भी यही देंगे माअस्सलामा, कि आप भी सलामत रहें। इस तरह से आपके ये सवालात हो जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है तबादल अस्सवाल वल जवाब मा ज़मीलिक, कि अपने ज़मील का मतलब होता है क्लास फेलो, मा माना साथ, तबादल माना जैसे आप उर्दू में बोलते हैं तबादला करें, कि सवाल जवाब का अपने क्लास फेलो के साथ सवाल जवाब का तबादला करें, यानी आप उससे सवाल करें और वो आपसे सवाल करें, एक दूसरे को सवाल जवाब करें। कमा फिल मिसाल, जैसा कि मिसाल में है। मिसाल दी है मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता आप कहाँ से हैं? अब जवाब देंगे अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। इसी तरह आप कह रहे हैं कि अगले सवाल आप खुद बनाएं। तो पहला सवाल आप बनाएंगे मिन ऐना अंती, ये अंती है, ये फर्क ज़हन में रख लो, अंता और अंती दोनों का उर्दू में मतलब आप ही होता है। अलबत्ता थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि अंता
इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए और अंती इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए। यानी अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो मुज़क्कर है तो आप बोलेंगे मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। और अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो मुअन्नस है, फीमेल है, तो आप उसे बोलेंगे मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हैं। तो अब वो जवाब देगी अना मिनल इराक, अना मिनल इराक, मैं इराक से हूँ। इस तरह दूसरा सवाल हुआ लगा हुआ है, हुआ का मतलब होता है वो। अब आप सवाल बनाएंगे मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से है। जवाब में वही सूर्या चूंकि लिखे आपने यही जवाब लिखना है, हुआ मिन सूर्या, वो शाम से है। इसी तरह अगला सवाल है मिन ऐना हिया, मिन ऐना हिया के अब हिया हुआ होता है ये मुज़क्कर के लिए और हिया होती है मुअन्नस के लिए। जैसे अंता का मतलब है आप मुज़क्कर के लिए और अंती का मतलब भी आप है मगर मुअन्नस के लिए। इसी तरह हुआ, हुआ का मतलब होता है वो मगर मुज़क्कर के लिए, और हिया इसका मतलब होता है वो मगर मुअन्नस के लिए। तो अब सवाल है मिन ऐना हिया कि वो औरत कहाँ से है। तो जवाब मिस्र वाला देना है आपने। तो जवाब में कहेंगे हिया मिन मिस्र, वो मिस्र से है। अगला सवाल मिन ऐना अंती, यहाँ पर भी अंती ही है। इसका मतलब ये है कि किसी फीमेल से सवाल हो रहा है कि आप कहाँ से हैं। वो जवाब देती है अना मिन पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अब अगला जो सवाल है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह। इमलाइल फराग, फराग का मतलब होता है खाली जगह, इमला माना पुर करें। इमलाइल फराग, खाली जगह पुर करें। फिल जुमलिल आतिया, आने वाले जुमलों में। मिम्मा याती, जो नीचे आ रहे हैं, जो अल्फाज नीचे आ रहे हैं उनके जरिए से आप खाली जगह पुर करें। यानी इन्होंने कुछ अल्फाज नीचे आपके सामने दिए हुए हैं, मुझे कह रहे हैं कि इन्हीं को लगाना है और खाली जगह पुर करनी है। मसलन पहला लफ्ज है सुदानिया, सुदानिया का मतलब है सूडानी औरत। कैफा, कैसे। मिन, से। ऐना, कहाँ। ली, ये जैसे बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाम है अकेला। मुदर्रिस, उस्ताज। सहलन, ये अहलन व सहलन के साथ आएगा। इला, की तरफ। खैर, खैर। सईदा का मतलब जैसे आपने पढ़ लिया होगा यकीनन, सईदा का मतलब होता है बेहतरीन, अच्छा, खुशबख्ती। अब बरल खाली जगहों पे आते हैं। तो अहलन व सहलन, देखो पहली खाली जगह में लफ्ज लगेगा सहलन, अहलन व सहलन। दूसरी जगह अल्हम्दु और आगे लिखा हुआ है अल्लाह, तो इसके ऊपर लगेगा ये वाला लाम जो अकेला खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लफ्ज है समीर, समीर ये नाम है, इसके साथ आ जाएगा मुदर्रिस, समीरुन मुदर्रिस, समीर उस्ताज है। तीसरा चौथा है फुरसा, फुरसा उर्दू में भी जिसे आप फुर्सत बोलते हैं, मौका। मौका भी अच्छा मौका है, आप कहते हैं ना अच्छा मौका मिल गया, ये अच्छा लम्हा है, अच्छी फुर्सत है आपके पास। तो फुरसतुन सईदा, इसके साथ लफ्ज लगेगा सईदा, फुरसतुन सईदा, यानी बेहतरीन मौका है ये। फुरसतुन सईदा, बेहतरीन मौका है। इसके बाद है फातिमा सुदानिया, इसके साथ आएगा सुडानिया, चूंकि औरत है इसके साथ औरत वाला ही सुदानिया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं आपको ऐड कर दूं, अरबी में ना वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता होती है ना, वो मुअन्नस होते हैं। अरबी में वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता होती है वो मुअन्नस होते हैं। देखिए आप सुडानिया लिखा हुआ ना, सुडानिया गोलता है ना, इसका मतलब यह है कि ये किसी मुअन्नस के लिए है। तो यहाँ फातिमा भी मुअन्नस है, तो लिहाजा हम खाली जगह पे सुदानिया लगा देंगे। फातिमा तो सोदानिया, यानी फातिमा सोडानी औरत है। अना मिस्र, गोया कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मिस्र से हूँ। तो से के लिए आपको पता है कि लफ्ज इस्तेमाल होता है मिन, ये खड़ा है, तो यहाँ लगा दोगे मिन, अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ। हाँ, 7 नंबर में सिर्फ बा लिखा हुआ है और आपको पता है आप पढ़ चुके हैं बी खैर, तो ये खैर यहाँ मौजूद है, तो खाली जगह पे लफ्ज आ जाएगा खैर, बी खैर। हालुक, आपका हाल। आगे सवाल निशान भी है, तो मतलब यह है कि सवाल हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर लफ्ज आपके पास आ जाएगा कैफा, कैफा हालुक, कि आपका क्या हाल है।
अच्छा जी, आगे रहा मिन, और वैसे ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, खाली जगह भी दी हुई है और आगे उसका जवाब भी लिखा हुआ है मिन आइना अंता। तो हकीकत में यहाँ पर लफ्ज़ आइना ही आना चाहिए था जो यहाँ दिया भी है, लेकिन कंपोजिंग वाले ने खाली जगह भी दे दी और आइना आगे लगा भी दिया है, लिहाजा यहाँ आइना ही आना चाहिए। बहरहाल ये उस वक्त आएगा जब ये ख़त्म कर देंगे तो खाली जगह पे आइना। मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं। और 10 नंबर है लिखा, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं इसके आखिर में कि जब भी आप दोस्त अलहदा होते हैं, जब आप कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे, तो उसके लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं इलल लिक़ा। इलल लिक़ा, तो शुरू में लफ्ज़ आ जाएगा इला, इलल लिक़ा, फिर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये सबक मश्क समेत मुकम्मल हो गया। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।